Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. As you all know, what we are gonna do, we will be doing the exercises, questions, study of all the topics included in your school examinations and in the Olympiads. All right, so we will be covering a vast range of syllabus, which includes both your school examination syllabus and the Olympiad syllabus, right? And which Olympiad we are going to study for? 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSA, NSCJS, PRMO and your school examination which is from 6 to 10, right? So this lecture is for class 8 and this is the chapter 2, lecture 2. All right, in the lecture 1 we have studied about force, like what is force, how force can be applied, which object shows that some force is applied on it and some effects of that force, right? And we have calculated the force, right, with the formula of acceleration, mass, right? So these are the basic things which you should be know before starting the actual balanced or unbalanced forces. All right, this will be the lecture 2, and in this lecture we are going to study balanced forces, unbalanced forces and resultant forces, and I can say a lot of calculation. All right, so if you want any study material and DPP, you can access them on our Telegram app. On this, all you have to do is to go on Telegram app. You have to search TTB08 for class 8. All right, and you have to join that channel. That's it, all you have to do. All right, the special thing I have already told you, but again I should be telling you because maybe you have forgotten. Now see, what you have to do is www.talkingtextbooks.in. You have to go on this website, write this website in web browser, any web browser. All right, now you will be seeing our websites. Okay, उस website पे, on that website there will be packages like this for every class, and all you have to do is to choose the packages which is suitable for you, right? So this is an example of a package. This is for class 6 foundation in Olympiad. The name suggests what we are doing in this package. The foundation and Olympiad, that means it would be a very basic study for your future aspirations and also as well as for your Olympiads. Now see, in this cost of 9,000, what you will be getting is comprehensive study material, which is must because you should be knowing what you have to study before fighting for the competitive examinations, right? Recorded and live classes, this is a must because whenever you need to go the previous topics, you can study from the recorded lectures, you can always access them. Homework submission is an important aspect of this package because most of the students do not do their homework, so you must be like a little bit responsible so that you submit your homework every single time whenever a homework is given to you, right? Bi-weekly quizzes, that's the important thing because you should know how much you have studied and which part are so much confusing for you, which are the easiest one, which are the hardest one. This will be clear when you attempt the bi-weekly quizzes. Periodic test papers of the same pattern, this is important because you should know the monster you are fighting, right? So if you are fighting a competitive exam, that should be treated as a monster and you should know how the paper comes in the competitive exam, right, or the school examination. So that these are the important aspects you can get in this package. All you have to do is to click buy now. You will be forwarded on this page. In this page you can see the cost of your package is 9,000, right? But if you write a code CYLIVE, all right, if you write this code CY Live, you will be getting 30% discount. That means 2,700 will be deducted from the 9,000 and the package will become 6,300. All right, all you have to do is to click on buy package and you will be forwarded on the options through which you can buy this package. If you have any query regarding the admission or regarding the packages, regarding the website, you can call us on this number. All your queries will be resolved. All right, so this was the important thing I wanted to tell you. If you want a hard study for the competitive examinations. All right, now let's move on to our lecture. So first take out your notebooks and pens and just promise yourself you will be watching the whole lecture. You will be making notes and you will be revising it on a daily basis to become a smart student, right? Now see, this is our lecture 2, balanced forces.
अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, हम ये तीन चीजें आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं या फिर जानने वाले हैं। ठीक है, ये दो चीजें आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, फोर्स आप सीख चुके हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आप सीख चुके हैं। आज बारी है बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फोर्सेस। राइट नाउ सी, जब कभी भी हम बैलेंस्ड फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं तो आपको नहीं लगता इसका कुछ मतलब बैलेंस से होना चाहिए? बैलेंस का मतलब सभी जानते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल। अगर हम बोले कि कोई सी सॉ, आप लोगों ने देखा होगा ना कैसा होता है सी सॉ। ठीक है, इट लुक लाइक दिस, आई एम ड्राइंग जस्ट अ रफ फिगर ऑफ सी सॉ। इट लुक्स लाइक दिस, राइट। यहाँ पर एक बच्चा बैठ जाता है, ठीक है, दिस इज वन सिटिंग एंड दिस इज द सेकेंड वन। ऑल राइट, अब आप लोग क्या करते हैं, वॉट यू विल डू इज टू सिट ऑन बोथ द सीट्स। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, वो जाकर बैठ जाते हैं। अगर कोई यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है, ये कोई भी एक है जो बैठ गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी बैठ जाता है। नाउ व्हाट यू डू, ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है, राइट, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो दैट्स हाउ वी प्ले ऑन दी सी सॉ, राइट। बट व्हाट इज द थिंग कि भाई यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स की क्या बात आ रही है? जब कभी भी वो सी सॉ किस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, इक्वल इक्वल अगर होगा, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, लेकिन अगर सी सॉ कुछ ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर एक बहुत ही थोड़ा अच्छा मोटा हेल्दी वेट वाला बच्चा बैठ जाए और यहाँ पर कोई कम वेट वाला बच्चा बैठ जाए, तो डेफिनेट सी बात है ये वाला एरिया नीचे चला जाएगा और ये वाला सिटिंग एरिया ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड, राइट, वी ऑल नो दिस इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, इसी तरीके से जब कभी भी हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर सब्जियाँ खरीद रहे हैं, सब्जियाँ खरीदते वक्त जो शॉपकीपर होता है, जो वेंडर होता है, वो क्या करता है, वो बीम बैलेंस से मेजर करता है, राइट। यू हैव सीन द बीम बैलेंस, आई होप यू हैव सीन द बीम बैलेंस। देखिए उसमें कुछ इस तरीके का होता है कि भाई यहाँ से तो वो इस हैंडल को पकड़ के रखता है, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर एक कुछ रोप से या फिर चेन से एक छोटा सा, ये तो पुराने ज़माने का बना रही हूँ मैं, मतलब बहुत पहले ऐसे चलते थे, ठीक है, इस टाइप का जो है बीम बैलेंस आपको नज़र आता होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उसको। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पर क्या करते थे, इस बीम बैलेंस में भी बैलेंस का क्या, देखो नाम में ही बैलेंस छुपा हुआ है, देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इस जगह पर जब कभी भी इस जगह पर हम लोगों ने कुछ सामान रख दिया, लेट्स से हमने रख दिया बहुत सारे टमाटर, ठीक है, ये हैं टमाटर, जस्ट अज्यूम कि ये टमाटर हैं। ठीक है, अब नाउ सी, यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो क्या रख देता है, यहाँ पर रख देता है वो ब्लॉक जो कि मेजरिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि 1 kg का आयरन ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया है 1 kg आयरन ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है ना वो वेट करता है, ऐसे करके पकड़ के रखता है, ठीक है, और वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि कब ये जो बैलेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाती, इक्वल अमाउंट दोनों में नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक वो वेट करता है जब तक वो और टमाटर डालता रहता है। जैसे ही यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे दोनों, उसी वक्त वो बोल देता है कि भाई ये हैं तुम्हारे 1 किलो टमाटर, राइट। तो ये जो बैलेंसिंग वाली चीज़ है ना, ये बहुत जगह काम आती है। मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग भी बैलेंसिंग वाला गेम खेलते होंगे, है ना, उसमें खुद को ऐसे बैलेंस करके चलते हैं। आपने वो सर्कस भी देखा होगा जिसके अंदर रोप वॉक होती है, राइट, और जब रोप वॉक होती है तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, एक स्टिक के साथ अपना बैलेंस बनाना पड़ता है। तो दैट इज द थिंग कि ये जो बैलेंस वर्ड है ना, ये बहुत कॉमन है और हम सभी लगभग बैलेंस का मतलब जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हम फोर्स के कंसेप्ट के साथ बैलेंस्ड फोर्सेस को कैसे समझ सकते हैं। नाउ सी, इफ a number of forces acting on an object do not produce, यहाँ पर ध्यान दीजिए, do not produce any change in its state of rest or uniform motion or direction of motion, then they are called as balanced forces। क्या बोला गया है कि अगर बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
आप क्या करें, एक बहुत बड़ा, ठीक है, लेट्स से अ बिग टेडी बियर यू कैन से ऑल, ठीक है, या फिर एक बिग क्वेश्चन आप ले सकते हैं और आप इधर से उस पर फोर्स लगाइए, आपके फ्रेंड को इधर से फोर्स लगाने के लिए बोलिए कि कोई ऊपर से भी फोर्स लगा सकता है, ठीक है, जितने डायरेक्शन से आप फोर्स लगा सके आप उस पर फोर्स लगाइए और सी कि क्या आप उसको मूव करवा पाते हैं, क्या आप उसको उसकी जगह से हिला पाते हैं, या फिर क्या आप उसका मूव करते हुए का डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं, राइट। ये जो चीज़ें हैं, अगर ऐसा आप कर पाए, अगर आपने उस बॉडी को मूव कर पाए जो कि रेस्ट पे थी, दैट मीन्स देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आप बॉडी को मूव नहीं करवा पाते हैं, तो वो कौन सा फोर्सेस हो जाएंगे, वो बैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से। नाउ सी दिस इज द मिडल वन और दिस इज द नॉट, जो कि हम लोग जो है इस गेम में हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉट होती है, ये हम मेजर करते हैं कि ये जिसके भी पार्ट में आ जाएगा वो विनर हो जाएगा, राइट। अब देखो, अगर ये तीन लोग 300 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, लेट्स से एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और ये तीन लोग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और सेम फोर्स लगा रहे हैं, 300 न्यूटन ही लगा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों इधर की तरफ लगा रहे हैं बट इक्वल लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई ये वाली नॉट तो मूव ही नहीं करेगी। जब दोनों बराबर हैं, दोनों साइड में एक्स और माइनस एक्स दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो बीच का वो जो नॉट है वो मूव करेगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। जब कभी भी अगर ये नॉट मूव कर गई, ठीक है, जरा से भी मूव कर गई, दैट मीन्स देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। कैसे, वो देखो, यहाँ 300 न्यूटन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन लोग हैं ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगर गलती से इन्होंने, एक ने भी 50 न्यूटन का फोर्स बढ़ा दिया, ठीक है, एक को बहुत गुस्सा आया कि मुझको अब तो जीतना ही है, तो उसने क्या किया, थोड़ा और एक्स्ट्रा जोर लगाया और एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, तो उसने 50 न्यूटन बढ़ा दिया। अब देखेंगे यहाँ पर हो गया है 350, यहाँ पर हो गया है 300, कहाँ मूव करेगी नॉट, ऑब्वियसली 350 की तरफ, राइट। तो इसका मतलब अब बैलेंस्ड नहीं रहा, अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, राइट। तो बैलेंस का मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्सेस बट इक्वल फोर्सेस हैं। बैलेंस्ड का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस हैं तो वो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कैसे, अ पर्सन होल्डिंग अ ब्रीफ केस इन हैंड, लाइक सी आई हैव होल्ड दिस पेन, राइट। अब मैंने इस पेन को होल्ड किया हुआ है, एम आई मूविंग दिस पेन, मैंने फोर्स लगा रखा है, राइट। इस पेन पे ऑब्वियसली जो हमारी अर्थ है वो अपना फोर्स तो लगा ही रही है, ठीक है, वो अपना फोर्स लगा रही है जिसे हम mg बोलेंगे, ठीक है। बट सी मेरा हैंड ने भी मस्कुलर फोर्स लगाया हुआ है इसको होल्ड करने के लिए, राइट। नाउ सी इट इज मूविंग, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स जो मैंने मस्कुलर फोर्स अपने हैंड से लगाया हुआ है, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बैलेंस्ड फोर्स जो कि हमारी अर्थ लगा रही है, जो फोर्स हमारी अर्थ लगा रही है, दैट इज बैलेंस्ड बाय माई हैंड एंड नाउ इट इज नॉट मूविंग, right, you can see it is not moving, but if I drop this pen or I stop applying the muscular force I am applying till now, if I stop doing this, it will fall, right, it will fall, that means it will become moving, and when it is moving there is no balanced force, then there will be the unbalanced force, ठीक है। तो देखेंगे और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, सी दिस इज अ बुक, राइट, you can see this is a book resting on a table, now is this book is moving, not at all, not at all, right। So what is the reason behind कि भाई ये move नहीं करे, because all the forces acting on this are balanced, right। देखेंगे इस बुक के ऊपर जितना भी अर्थ के थ्रू फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो उसको नीचे खींचेगा, डेफिनेट सी बात है, अर्थ हमेशा पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को, तो वो इस बुक को भी पुल करेगी। जैसे ही वो एक बुक को पुल करेगी, लेकिन बीच में कौन आ रहा है, टेबल, टेबल का नॉर्मल फोर्स इसे नीचे मूव नहीं करने देगा, दैट मीन्स टेबल का जो नॉर्मल फोर्स है और जो अर्थ का फोर्स है, अर्थ का पुलिंग फोर्स है, वो दोनों आपस में बैलेंस्ड आउट हो गए। तो दैट इज द थिंग कि अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब है उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, बट वो ऐसे फोर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और वो क्या बन जाते हैं, बैलेंस बन जाते हैं। नाउ सी स्क्वीजिंग अ लेमन इज
ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस फोर्स। अब तुम बोलोगे स्क्वीजिंग अ लेमन, क्यों? हम लोग लेमन को दबाते हैं और जूस निकल जाता है, राइट? हम ऐसे उसको स्क्वीज करेंगे तो उसमें से जूस निकल जाएगा। दिस इज द थिंग, उसका शेप चेंज हो गया है, बट वो मूव नहीं करा। हमने उसको पकड़कर सिर्फ स्क्वीज किया है, दैट मीन्स उसका शेप चेंज हुआ है बट उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, अनलेस हम उसको लेके नहीं जाएं कहीं, ठीक है? तो स्क्वीजिंग अ लेमन भी किसका एग्जाम्पल है? बैलेंस फोर्सेस का एग्जाम्पल है, बिकॉज द लेमन इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट्स जस्ट चेंजिंग इट्स शेप and all the juice is coming out from the lemon, right? Now see, these are the examples of the balance force. I hope you understand the meaning of balance force. Whenever a body is not moving at all, that means it has some balance force acting on it, all right? never thought like that कि भाई उस पर कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब नहीं होता। अगर कोई बॉडी रखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर फोर्स, मतलब वहां पर उस बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? वहां पर फोर्सेस हैं, बिकॉज अर्थ हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी, सो देयर विल बी फोर्स ऑलवेज अवेलेबल ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट? फिर अगर वो स्पेस में चली जाती है तो बात अलग है, तब तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, राइट? बट अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे होती है तो इसका मतलब अगर वो रखी हुई है, दैट मीन्स कि भाई उसके ऊपर एक्टिंग फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए हैं, ठीक है? तो ये जो है एक बैलेंस फोर्सेस का जो है हमारा नेचर हम कह सकते हैं, या फिर उसका डेफिनेशन कि भाई वो क्या कर सकती है। नाउ सी, हमने स्टेट ऑफ रेस्ट तो है वो देख लिया, स्टेट ऑफ रेस्ट लाइक इट्स नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट? अगर वो कोई चीज रखी हुई है तो वो रखी हुई है, ठीक है? इसका मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम आर बैलेंस्ड, राइट? नाउ सी, और यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? कि कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव करती है तो इसका मतलब कि वहां पर नो एक्सेलरेशन, राइट? देखो, एक्सेलरेशन को इतना भारी मत समझो, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है या नहीं, दैट्स इट। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स उसका स्पीड चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है? लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन्स कि बॉडी मूव तो करेगी बट उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करेगी, ठीक है? तो दिस इज द थिंग कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी मूव करेगी बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? और यही चीज क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करना इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट तो हम बता चुके हैं, ठीक है? मूव नहीं करेगी। यहाँ पर देखेंगे अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, फॉर एग्जाम्पल इट इज मूविंग विद 2 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज स्टिल मूविंग विद 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तब हम बोलेंगे कि वो जो बॉडी है दैट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, राइट? और उस यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहे, उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, बट वो सारे के सारे फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, राइट? तो कभी भी कोई भी बॉडी अगर अपना कांस्टेंट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट मीन्स उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखेंगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा अनलेस कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड कर दे फोर्सेस को, वो आ नहीं जाता, ठीक है? तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम सिंपल समझ सकते हैं कि हर बॉडी के ऊपर फोर्स तो एक्ट करते हैं, बट उसका मोशन अगर स्टॉप है, राइट? अगर वो नहीं मूव कर रही है, दैट मीन्स उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अगर वो स्ट्रेट मूव कर रही है, कांस्टेंट मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मीन्स उसके ऊपर भी बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है? अगर कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है, या फिर जिस डायरेक्शन में उसको चलना है चलते जा रही है, दैट मीन्स उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड, आर बैलेंस्ड और शुड आई से, ठीक है? तो अब जब हम बैलेंस फोर्सेस को समझ चुके हैं तो अब हम चलते हैं नॉन अनबैलेंस्ड की तरफ, ठीक है? नाउ सी, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होगा किसका? बैलेंस्ड का। लेट्स सी, यहाँ पर देखेंगे इफ
a number of forces acting on an object produce a change. Produce a change in its state of rest or uniform motion or direction of motion, then they are termed as unbalanced forces. ठीक है, आप लोग इसे कैसे समझ सकते हो कि भाई आपको क्या करना पड़ता है. आपको पता है कि अगर आपको किसी बॉडी को मूव करवाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको धक्का मारना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरीके से ब्रेक लगाना पड़ेगा, और अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो यू हैव टू पुल दी हैंडल, राइट. तो ये जो चीज़ें हैं दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है. जैसे ही आपने एक्स्ट्रा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया तो डेफिनेट सी बात है जो फोर्सेस पहले से बैलेंस थे अब वो बैलेंस्ड हो गए. देखा था ना हमने लास्ट वाले में, देखा था ना, जैसे ही थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाया अनबैलेंस्ड हो गया ये, है ना, इधर की तरफ नॉट चला गया और ये टीम जीत गई, राइट. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि अगर हमें जरा सा भी अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे तो क्या होगा, जो बैलेंस्ड फोर्सेस थे वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे. और उस कैटेगरी में कौन जाएगा, उस कैटेगरी में अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कैटेगरी में कौन कौन जा सकता है. जैसे कोई बॉडी फॉल कर रही है, राइट, फॉलिंग मीन्स इट इज मूविंग एट दैट मोमेंट, ठीक है, जब वो फॉल कर रही होगी, ठीक है, ऐसा नहीं वो गिर गई खत्म, नहीं, वो जब फॉल कर रही होगी एट दैट टाइम इट विल बी इन मोशन, राइट. ऑब्वियसली मूव कर रही है, वो फॉल कर रही है. ड्यूरिंग दैट हम बोलेंगे इसके ऊपर अब जो है अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. फिर जब वो गिर के रुक जाएगी कोई भी बॉडी तो फिर हम बोलेंगे हाँ अब इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड हो गए, राइट. तो जब कभी भी कोई बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, मतलब रेस्ट से मूव कर रही हो, या फिर क्या हो रहा, उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, या फिर कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, ठीक है, ड्यू टू सम फोर्स, तब हम बोलेंगे कि उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है. नाउ सी दिस इज द गुड एग्जांपल. अब की बार क्या हुआ, ये जो नॉट यहाँ पर था ना, 400 न्यूटन उधर की तरफ फोर्स लगा, 300 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो इट विल नॉट बी बैलेंस्ड, राइट. ये अब क्या होगा, फोर्स ज्यादा उधर की तरफ हो गया तो ये नॉट उधर चल जाएगी. अब कौन जीतेगा, 400 वाली टीम जीत जाएगी, राइट. तो दीज आर द थिंग. अब देखिए द ब्रीफकेस रिलीज्ड फ्रॉम अ पर्सन्स हैंड. अब क्या हो रहा है, उस पर्सन के हाथ से ब्रीफकेस छूट गया तो वो गिर जाएगा. जैसे ही वो गिर रहा होगा उस वक्त उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस काम करेंगे, बिकॉज वो उस वक्त क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, राइट. और मूव भी कैसे कर रहा होगा, उसका स्पीड चेंज हो रही होगी. क्यों, क्योंकि हमको तो ये बात पता है ना कि धरती माता हम लोगों पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ वाला चीज लगाती है, राइट. वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट अभी हम ये समझेंगे कि कोई भी बॉडी अगर नीचे गिर रही होती है दैट मीन्स उसका स्पीड क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है. तो जब कभी भी हम गिरने की बात करेंगे तो जब वो बॉडी गिर रही होगी दैट मीन्स एक तो वो मूव कर रही है, बिल्कुल सही बात है. दूसरा उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वहां पे अनबैलेंस फोर्सेस है, ठीक है, उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दैट इज दी थिंग, ठीक है. स्टोन ड्रॉप्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दी अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है. अब देखेंगे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लाइक दिस, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस, आप खुद से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए. क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग, देखो जब तक ये एक एक ऑटो था तब तक इट वाज गुड. जैसे ही इसके ऊपर सेकेंड ऑटो आया दैट मीन्स एक्स्ट्रा फोर्स, दैट मीन्स जब है ये अनबैलेंस्ड हो गया, एक तरफ ज्यादा फोर्स हो गया एक तरफ कम फोर्स हो गया, सो दीज आर दी अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है. तो इस तरीके से हम हर एक ऑब्जेक्ट पे बता सकते हैं कि भाई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड हैं फोर्सेस या फिर अनबैलेंस्ड है फोर्सेस. फोर्सेस होते तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, उनके टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम उनके टाइप्स ही पढ़ेंगे. बट द थिंग इज तुमको पहले से पता होना चाहिए कि भाई कब जो टोटल फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं और कब जो टोटल फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, ठीक है. तो आप इसको फटाफट से इसका डेफिनेशन नोट कर लो.
चलो अब तो आप लोगों ने समझ लिया कि भाई अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है और बैलेंस्ड फोर्सेस क्या है, ठीक है। अब ये बात समझो, जब तक बैलेंस्ड फोर्सेस थे तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करें बॉडी पे दैट मीन्स 0 होगा, ठीक है। यही हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस फोर्स की केस में भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखेंगे जब हम बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं ना, दैट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, टोटल फोर्स हम बोल रहे हैं टोटल फोर्स, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे फोर्सेस एक तो बैलेंस्ड है, और जब सभी फोर्सेस बैलेंस्ड है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है उसके ऊपर कोई टोटल फोर्स नहीं है, टोटल फोर्स 0 है, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और नेट फोर्स टोटल फोर्स 0 बता रहे हैं, राइट। अब जब हमने बैलेंस्ड फोर्स की बात करी, जब हम बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त वहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी है जो बॉडी को मूव करवा रहा है, राइट। तो वो जब उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि भाई टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी is non-zero, right। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि वहां कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा फोर्स है, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है। अब देखेंगे वहां पे जब हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो तो जानना जरूरी है ना। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सीखना क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है ना अनबैलेंस करने के लिए, दो चीजें आराम से बैलेंस थी, 300 बैलेंस थी, यहाँ पे 400 आया अब, ठीक है। तो इसका मतलब +100 हो गया, तो ये जो +100 एक्स्ट्रा फोर्स था यहाँ पर, दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज नोन एज व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स, राइट। एंड उसी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट का मैं आधा आधा तो आपको नाम से पता चल रहा है, रिजल्टेंट इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड करके कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके यू आर गेटिंग द रिजल्ट, राइट। तो देखेंगे if the number of forces acting on an object are replaced by a single force having the same effect on the object, then that single force is known as the resultant force। Let's see some example ताकि आपको समझ आ सके। See, ये है एक बच्चा जो कि झूले पे बैठा है, we can call it a झूला और we can say a small bicycle और a toy bicycle, ठीक है, it's a toy। तो वी कैन से ये जो गर्ल है, ठीक है, ग्रीन ड्रेस में जो गर्ल है दैट इज अप्लाइंग फोर्स कॉल दी F1, ठीक है। और जो ये बॉय है दैट इज अप्लाइंग फोर्स F2, राइट। तो इसका मतलब इस बॉय के ऊपर, इस बॉय को मूव करवाने के लिए दो फोर्सेस जो हैं लग रहे हैं इसके ऊपर, राइट, F1 एंड F2, ठीक है। अब देखो इसको मूव करवाने के लिए, तो इसका मतलब तो यही हुआ, अगर ये रेस्ट पे होता तो इसका मतलब इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस होते, बट इट इज मूविंग, दैट मीन्स कि भाई ये जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं ये दोनों F1 और F2 ही तो हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसके ऊपर देखें कि भाई इस बच्चे के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है वो अगर मैं देखना चाहूं तो व्हाट शुड आई से, आई शुड से दिस इज द टोटल फोर्स। और मैंने ऐड क्यों किया, यहाँ पर मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, F1 भी +x की तरफ उसको डायरेक्शन दे रहा है, F2 भी +x की तरफ उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों फोर्सेस शुड बी एडेड टुगेदर। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया F1 एंड F2। अब ये जो बच्चा है दैट इज इन द ब्लू, दैट इज ऑन द टॉय कार, राइट, वो जो बच्चा है उसके ऊपर टोटल फोर्स काम कौन कर रहा है, F1 एंड F2, राइट।
अब अगर मैं इस F1 और F2 को एक नया नाम दे दूं, ठीक है, या फिर मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे को, इन दोनों को हटा दूं और एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को लेकर आ जाऊं और उसको मैं बोलूं कि भाई तुम इतना फोर्स ही अप्लाई करो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हटा दिया, किसी और को लगा दिया जो कि सेम इफेक्ट दे रहा है, जो कि उतना ही फोर्स लगा रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे जो F1 है यानी कि जो गर्ल अप्लाई कर रही है, लेट्स से कि वो 3 न्यूटन अप्लाई कर रही है, ठीक है, मूव करने के लिए 3 न्यूटन अप्लाई कर रही है। अब देखते हैं कि ये जो बॉय जो येलो में है, ये बॉय वो क्या कर रहा है, वो भी 3 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 6 न्यूटन, ठीक है, तो मुझे मिलना चाहिए 6 न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ F3, राइट। और अब मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों को हटाकर, ठीक है, इन दोनों को बोलती हूँ मैं कि भाई तुम मत करो, इनको पुल मत कर, पुश मत करो, और मैं एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को लेकर आ जाऊँ और मैं उसको बोलूँ कि तुम इस ब्लू वाले को, वो जो स्ट्रॉन्ग बच्चा मैं लेके आऊंगी उसको बोलूँगी कि भाई तुम इस ब्लू वाले टॉय कार में जो बच्चा बैठा है उसको तुम पुश करो, और तुम्हारा फोर्स कितना होना चाहिए, 6 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, दो फोर्स को हटाकर मैंने एक फोर्स को लगा दिया और सेम टू सेम उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, 6 न्यूटन हो रहा है, 6 न्यूटन हो रहा है। दिस इज अ थिंग, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वन। इसका मतलब जो बच्चा, एक्स्ट्रा बच्चा जो मैं लेकर आई थी, जो फोर्स लगा रहा होगा 6 न्यूटन का, तो वो क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा, राइट। रिजल्टेंट का मतलब है इन दो फोर्सेस को हटाकर मैंने इसकी जगह सिर्फ एक फोर्स को रख दिया और मुझे सेम इफेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब 6 न्यूटन ही मिल रहा है। दैट मीन्स कि भाई यहाँ पर जो फोर्स है, टोटल फोर्स दैट इज सेम, बट नंबर ऑफ फोर्सेस इज 1, और पहले वाले केस में 2, तो दैट मीन्स द वन विच इज द पुशिंग विद द सेम फोर्स इज नोन एज द रिजल्टेंट वन। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से समथिंग डिफरेंट और लेट्स अज्यूम अ डिफरेंट, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, राइट, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है, ये एक बॉक्स था, दिवाली की सफाई चल रही थी, बॉक्स था, बॉक्स को हटाना था और तुम्हारी मॉम ने तुमको ये टास्क दिया है कि भाई तुम्हें इसे हटाना है, राइट, और ये बहुत हैवी है। नाउ सी, अगर तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है, यहाँ पर y मीन्स u, ठीक है, तुम्हारे ब्रदर ने फोर्स लगाया भाई 3 न्यूटन, B फॉर ब्रदर, ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स तुम्हारे ब्रदर ने लगाया, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, तुम दोनों ने मेहनत करके 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉक्स हिला ही नहीं, ठीक है। अब देखो, जब ये बॉक्स हिला ही नहीं तो तुम्हारे फादर ने सोचा कि भाई इन दोनों से कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब तुम्हारे फादर को आना पड़ा। अब तुम्हारे फादर ने क्या किया, तुम दोनों को हटा दिया, ठीक है, तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि तुम दोनों नहीं हो और तुम्हारे फादर जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और उन्होंने अकेले ही, तुम दोनों ने जितना लगाया था उसको प्लस करके अकेले ही उन्होंने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब इन्होंने जो फोर्स लगाया है तो दैट इज द रिजल्टेंट वन, बिकॉज आप लोगों ने लगाया था वो 2 लोग मिलकर लगा रहे थे 5, यहाँ पर एक ही जना क्या कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स ये जो 5 न्यूटन का फोर्स लगाने वाले जो फादर है वो किनके रिजल्टेंट है, तुम दोनों के स्ट्रॉन्गनेस के बराबर है, राइट। लाइक तुमने जितना फोर्स लगाया, तुम्हारे ब्रदर ने जितना फोर्स लगाया विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय योर फादर। दैट मीन्स कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स उन्होंने लगाया है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स इकलौते फोर्स ने लगाया है दैट विल बी द रिजल्टेंट, बिकॉज वो दोनों का एडिशन है, राइट। तो 2 और 3 will get added to give you what, the 5 Newton, right? This is called the resultant force, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, ये झगड़े तो हर जगह होते हैं, राइट, टॉयज को लेकर, बुक्स को लेकर, कुछ भी चीज़ों को लेकर झगड़े होते ही होते हैं, बट हम यहाँ से भी रिजल्टेंट फोर्स सीख सकते हैं। बल्कि तुमने तो देखा होगा, ये तो एक डायरेक्शन की बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, तुम खुद से ही देखो, ये जो रेड शर्ट में बच्चा है ये अपनी तरफ टॉय को खींचेगा, ठीक है। लेट मी यूज अनदर एरो क्योंकि तुम्हें शायद दिखे नहीं, देखो ये अपनी तरफ खींचेगा टॉय को, डेफिनेटली उसको चाहिए, ठीक है, बट ये जो ब्लू वाला है ये अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स इस टॉय के ऊपर फोर्स तो लग रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। तो इसका मतलब जो भी फोर्स ज्यादा लगाएगा वो जीतेगा, उसको टॉय मिल जाएगा।
है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये जो रेड वाला है वो F1 फोर्स लगाता है और जो ब्लू वाला है वो F2 फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगी, रिजल्टेंट मतलब द एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन दी टॉय, राइट। तो अब जब मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूंगी, टोटल फोर्स, नेट फोर्स निकालना चाहूंगी, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए दिस इन दी प्लस एक्स, तो मैं बोलूंगी F1 माइनस F2। मैंने माइनस क्यों किया यहाँ पर, माइनस क्यों किया, बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, राइट। अगर ये वाला डायरेक्शन में प्लस अज्यूम करती हूँ तो मुझे इसके अपोजिट वाला माइनस लेना ही होगा, ठीक है। तो दैट मीन जो F1 है वो तो पॉजिटिव हो गया, F2 है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रिजल्टेंट क्या मिला, F1 माइनस F2, ये हमको रिजल्टेंट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा फोर्स है वहां पे, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो मूव कर रही है या फिर वो क्या कर रही है, अनबैलेंस फोर्सेस को शो कर रही है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी, ठीक है, ये तो डायरेक्शन वाली बात हुई कि या तो दोनों फोर्सेस इधर लग रहे हैं, ठीक है, या तो दोनों फोर्सेस इधर लग रहे हैं, या फिर दोनों फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और हो सकता है वो एक दूसरे की तरफ पॉइंटिंग में भी लग रहे हों, राइट। तो ये तो सिर्फ 1D की बात थी, ठीक है, 1 डायमेंशन की बात थी, इधर लेफ्ट इधर राइट, दैट्स इट, है ना। अब अगर आपके पास 2D की बात आए तो क्या करेंगे, जब आपके पास कुछ इस तरीके से फोर्स आए कि भाई आपको एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पॉजिटिव वाई में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब आप रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है द नेट फोर्स, ठीक है, हमको क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है एक्टिंग ऑन द बॉक्स अलोंग विद डायरेक्शन, जो कि बॉक्स पे एक्ट कर रहा है वो नेट फोर्स निकालना है, प्लस हमें ये भी बताना है कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। आज मैं तुम्हें किस चीज़ का एप्लीकेशन बताऊंगी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, उसी के उसका जो एप्लीकेशन है वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दिस इज इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, प्लस एक्स आई शुड से, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, प्लस वाई डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कम्स, जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फर्स्ट। आप लोग दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप जो कैलकुलेशन करेंगे उससे आप निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, और जो दूसरा कैलकुलेशन करेंगे उससे निकालेंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। हमें 2 थिंग्स कैलकुलेट करनी है, हमें एक तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, साथ ही साथ हमें और क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन, ठीक है, और वो भी किसकी, रिजल्टेंट फोर्स की, ठीक है, नेट फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल आई हैव टू डू इज, मैं तुम्हें बताती हूँ, वी कैन टेक दीज एज द एक्स और वाई एज द आर्म्स ऑफ अ ट्राइंगल। हाउ, जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, किससे, एक लाइन से, मैंने इन दोनों को क्या किया है, जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है। दिस लाइन यू कैन सी दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल वी हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, ठीक है। अब देखेंगे ये जो है दिस इज कैन बी ट्रीटेड एज अ हाइपोटेनस, right, this can be treated as the base, this can be treated as the perpendicular, ऑलराइट। तो हमको अब पता चल गया है y एक्सिस पे जो है दैट इज परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे जो दैट इज बेस, एंड द लाइन जॉइनिंग बोथ y एंड द x एक्सिस कैन बी ट्रीटेड एज द हाइपोटेनस, राइट। अब हमें पाइथागोरस पता है, हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था पाइथागोरस थ्योरम में, हमने सीखा था, सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मैग्नीट्यूड
ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, अब यहां देखेंगे अप्लाइंग दी हाइपोटेनस ऑन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, applying not the hypotenuse, I should say applying the Pythagoras theorem. और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, जिसने लेक्चर देखा होगा उसको याद होगा, इसलिए तुम लोग को रोज लेक्चर देखना है और याद भी करना है, राइट, रिवीजन करना है, रिवीजन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि h में स्मॉल में लिख रही हूँ, ठीक है, दैट इज मीन्स h, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, b का स्क्वायर, दैट मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मुझे हाइपोटेनस नहीं पता, ठीक है, मुझे हाइपोटेनस नहीं पता, दैट इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। अगर मैं हाइपोटेनस निकाल देती हूँ, कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो वही क्या होगा, नेट फोर्स होगा। क्यों नेट फोर्स होगा, बिकॉज सी यहाँ पर जो 12 न्यूटन की बात हो रही है, ये क्या कर रहा है, इसका लेंथ बता रहा है, ये 12 इसका लेंथ है। बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं, जब हमने वेक्टर पढ़ा था, जब हम बोलते हैं कि कोई वेक्टर होता है, उसकी जितनी लेंथ होती है, क्या वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताता, बताता है ना, तो वही चीज हम लोग करेंगे। दिस द लेंथ ऑफ दिस बेस इज 12 एंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 5। तो अगर मुझे हाइपोटेनस की लेंथ मिल गई तो इसका मतलब मुझे रिजल्टेंट मिल गया, ठीक है। तो यहां पर जब मैं h की बात करूंगी, दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की बात जब मैं करूंगी, तब मुझे क्या मिलना चाहिए, अंडर रूट। वाई आई डिड दैट, बिकॉज ये वाला स्क्वायर है, जब वो इक्वल के उधर जाएगा तो इट विल बिकम द अंडर रूट, ठीक है। p का स्क्वायर, दैट मीन्स यहां से p का वैल्यू लेंगे 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यहां से वैल्यू लेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 5 जा कितना होता है 25, 12 12 जा कितना होता है 144, ऐड करने पे मुझे कितना मिलेगा 169, एंड 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 13 न्यूटन। दिस विल बी द रिजल्टेंट वन, ठीक है। तो ये जो 13 है, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया है हमारे रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट वुड बी ट्रीटेड एज दी 13 न्यूटन। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता करना है डायरेक्शन। अब जब तुम्हें डायरेक्शन पता करना है, तो तुम क्या करोगे, इस वाले को कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। जब तुम्हें डायरेक्शन की बात करनी है, तो यू विल बी टेक लाइक दिस। वाई सो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मैंने हाइपोटेनस को यूज किया, राइट। लेकिन अब जब मुझे डायरेक्शन निकालनी है, तो मुझे पता है डायरेक्शन वो नहीं होगी जो हाइपोटेनस का है। फॉर हाइपोटेनस के लिए मैंने सिर्फ लेंथ निकाला है, दैट मीन्स हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। डायरेक्शन के लिए आई विल टेक दिस, बिकॉज मुझको ये बात पता है कि अगर कोई बच्चा इसे ऊपर से खींचे, ऊपर की तरफ खींचे, अगर कोई बच्चा इसे एक्स की तरफ खींचे, जब कोई इस तरीके से खींच रहा होता है, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, इधर मूव करेगी, राइट। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन। बॉडी, ये जो पूरा ग्रीन बॉडी है, ये इधर की तरफ मूव करने लग जाएगी। जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जब कभी भी आपको वेक्टर से रिलेटेड या फिर फोर्स से रिलेटेड कभी डायरेक्शन पता करनी हो, तो इसका मतलब वहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वी आर कैलकुलेटिंग दिस एंगल, ठीक है। अब की बार, अब इस एंगल को करने के लिए मुझे फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, राइट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को लाने के लिए मैं क्या करूंगी, इस बार यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूंगी, राइट। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, आई नो दिस इज बेस, दिस इज 12, आई नो दिस इज 5, राइट, दिस इज 12, दिस इज परपेंडिकुलर, मुझको पता है भाई ये बात। तो दिस आर दी पैरेलल वंस,
तो इनका नंबर तो सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ठीक है। अब ये मेरे को वापस से क्या मिल गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डायरेक्शन। जैसे ही डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अब देखो डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, लेट्स नेम इट ABC, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें चाहिए जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए। तो हमें वो ट्रिक याद करनी, हमने जो किया था ना याद, वो ट्रिक वो हम लेंगे वापस। व्हाट वाज दैट ट्रिक? वो ट्रिक था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट, और सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल कैलकुलेट करना है, ये थीटा कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आई शुड नो व्हाट, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, तो मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए। तो मुझे कौन मिलेगा, देखिए पहला देखेंगे तो P और H है, मुझे H नहीं चाहिए। B और H है, मुझे H नहीं चाहिए। P और B है, मुझे ये चाहिए। तो व्हाट आई विल बी यूजिंग, आई विल बी यूजिंग दिस tan, ठीक है। और हम रिमेंबर करेंगे कि भाई जो tan थीटा था उसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या होगा, tan थीटा बराबर कौन है हमारा परपेंडिकुलर 5, बेस कौन है 12, तो हमारा जो एंगल थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। दिस इज आवर डायरेक्शन। तुम लोग सोचोगे ये कैसे डायरेक्शन होगा, बट लेट मी टेल यू, दिस इज द डायरेक्शन बिकॉज दिस थीटा इज शोइंग यू कि भाई तुम इस पॉजिटिव एक्स से कितना ऊपर जा रहे हो, कितना ऊपर एक्स्ट्रा जा रहे हो। दैट थीटा विल बी शोइंग यू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो फटाफट से नोट कर लो ये, फटाफट से। आई वुड रिकमेंड कि तुम वापस आज इसको आफ्टर द लेक्चर वापस से इसको खुद से बिना देखे कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े बहुत इजी हैं, बहुत जल्दी जल्दी होंगे, फटाफट मेरे साथ करते चलो, ठीक है। दिस विल बी द प्रैक्टिस ऑफ यू फॉर यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल दिस ऑब्जेक्ट मूव, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, हियर इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स इस ग्रे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है इन द एक्स डायरेक्शन। ये देखो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन पे, ठीक है, और 12 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन पे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल, हाउ विल दिस ऑब्जेक्ट मूव। ऑप्शन नंबर ए, इट वोंट मूव, ये तो सीधे सीधे कह रहा है कि ये मूव नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर बी, इट विल मूव टू द राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल मूव टू द लेफ्ट। ऑप्शन डी, इट विल मूव इन बोथ डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑब्वियसली यहाँ पर ए ऑप्शन से इट वोंट मूव, बिकॉज दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो रहे हैं, राइट। एक इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ है, दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड आउट, तो इसका मतलब मूव ही नहीं करेगा बॉडी, राइट, तो इट वोंट मूव। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल क्वेश्चन 2, which could be an example of balanced force, an asteroid moving at a constant speed through space, ठीक है। एस्ट्रॉइड है, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे। अब सीधे सीधे बोल दिया भैया, ये है ना एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है, इसको मैं और भी अच्छा बना देती हूँ। ये है एक एस्ट्रॉइड जिसका ना बहुत ही अजीब शेप है, राइट, और ये स्पेस में मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है।
अब जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो मैंने तुम्हें बताया था कि दैट मीन्स यहाँ पे नो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? नो एक्सेलरेशन। इसका मतलब नो फोर्स, इसका मतलब बैलेंस्ड, राइट? नो नेट फोर्स एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है? नो नेट फोर्स, दैट मीन्स बैलेंस्ड फोर्सेस। तो भाई ये तो होना चाहिए। अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ स्टॉप साइन। नाउ ये बोल दिया सीधे सीधे भाई एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन है, और जहां एक्सेलरेशन है वहां फोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे नॉन वी कैन से अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, राइट? तो हमारा बी ऑप्शन कैंसिल। अ बॉक्स ऑफ डिशेस फॉलिंग फ्रॉम अ काउंटर, काउंटर से फॉल कर रही हैं डिशेस, और जब मैंने बताया फॉलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अ रॉकेट टेकिंग ऑफ, जब भी रॉकेट टेक ऑफ करेगा तो अनबैलेंस तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि जब कभी भी कोई रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो वो क्या क्या फोर्सेस को हटाता है, ठीक है? कौन कौन से फोर्सेस को फाइट करता है? सबसे पहला उसका खुद का वेट, यानी कि जो धरती माता उसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रही है, वो उसको अनबैलेंस करके मूव कर रहा है, राइट? अगर उसका फोर्स जो कि रॉकेट ऊपर जाने के लिए फोर्स लगा रहा है और धरती माता का फोर्स अगर दोनों आपस में बराबर हो जाते तो रॉकेट तो मूव ही नहीं कर पाता। इसका मतलब रॉकेट को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। धरती माता जितना फोर्स लगा रही है उस रॉकेट के ऊपर, उसको उसका ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके रॉकेट मूव करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर अ रॉकेट टेकिंग ऑफ में भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि ज्यादा फोर्स हो गया ऊपर की तरफ और कम फोर्स हो गया नीचे की तरफ, ठीक है? तो ये हमारा डी ऑप्शन भी कैंसिल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए हम लोग देख सकते हैं अ प्लेट सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल। नाउ इट्स सिटिंग, बैठी हुई है, इसका मतलब बैलेंस्ड है, नॉट मूविंग, राइट? तो ये तो बैलेंस्ड ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अ बॉल एट द टॉप ऑफ अ हिल, दैट इज नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, इसका मतलब बैलेंस्ड। अर्थ ऑर्बिटिंग द सन, नाउ सी, अर्थ ऑर्बिटिंग द सन को हम मूव तो कर रही है अर्थ, लेकिन कांस्टेंट स्पीड पे कर रही है, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एयर है वो 365 ऑनलाइन अप्रॉक्स 365 डेज में ही कवर अप होता है। तो इसका मतलब वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड फोर्सेस होना चाहिए, राइट? बैलेंस्ड फोर्सेस होना चाहिए। अ बेसबॉल दैट हैज बीन थ्रोन टू होम प्लेट, उसको थ्रो कर दिया गया है, इसका मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया है एंड इट इज मूविंग। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया है, ठीक है? अब देखेंगे, ये है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये है न्यूमेरिकल्स, राइट? आई वॉन्ट कि भाई तुम न्यूमेरिकल्स खुद से पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसके बाद जो है मैं तुम लोग को बताऊंगी इसका आंसर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यू विल बी डूइंग योर सेल्फ, ठीक है? आप फटाफट से ना इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में कर सके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों को भी आप करेंगे, ठीक है? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको जो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है? तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा जो मैं आपको आज होमवर्क दूंगी वो है, लेट मी राइट इट, क्या है भाई? एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है? इतना ही करो, 6 और 3 हो गए ना, 9 क्वेश्चंस हो गए आज के, तो इतना ही आपको होमवर्क करना है, ठीक है? तो फिर हम लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, पहले तो क्वेश्चंस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, फिर मास वेट टॉर्क पढ़ेंगे, और फिर हम लोग अपना चैप्टर को फिनिश करेंगे विद सम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, सब लोग को स्प्रेड आउट करो कि भाई तुम यहाँ से स्टडी कर सकते हो, तुम यहाँ से अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, टारगेट अचीव कर सकते हो, राइट? सो डू हार्ड स्टडी, खुद भी स्टडी करो, फ्रेंड्स को भी स्टडी करवाओ, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट।